रज़ा, हम कहाँ जा रहे थे? शिनाली, हम बस चल रहे हैं। तो ट्रेन में क्यों हैं हम भाई? क्योंकि शिनाली, हम ट्रैवल कर रहे हैं और आज का शो ट्रैवल के बारे में। गाइस, वेलकम टू ज़िंदगी 360। अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है और एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये मेट्रो रेल जिस पे हम अभी खड़े हुए हैं। गाइस, मैं आपको बताऊं कि ये इतना पॉपुलर सिस्टम है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि रोज़ाना 8 लाख लोग इस ट्रेन पर जाते हैं। 8 लाख लोग और एक बंदर। बट गाइस, अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, मगर ये चैलेंज हमने ज़िंदगी 360 में लिया है। हमने काफ़ी इस शो में ट्रैवल किया है, अलग अलग शहर गए हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस किए हैं, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस, लाइक इवन दिस वन। I've had quite a few interesting experiences, guys. मैं बहुत जगह गया हूँ और बहुत से मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं। सबसे पहला एक्सपीरियंस जो मैंने किया था इस शो पे, दैट वाज इन कैलिफोर्निया, जहाँ मैंने सर्फिंग करने की कोशिश की थी। That's right, California is known for its surfing and I thought why not give it a try. आप खुद देखिएगा कि how well I did. गाइस, हम LA आए हैं और LA बहुत मशहूर है अपनी सर्फिंग के लिए, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने ये स्विम सूट पूरा पहना हुआ है। हम यहाँ रेडोंडो बीच पर आए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है और हम आज ये पता करने की कोशिश करेंगे कि मुझ में हिम्मत है सर्फ करने के लिए। Let's find out. Aloha, my name's Selena and I'm a surf instructor with Surf Lessons with Katie. And today I'm going to be teaching you just the basics of surfing, how to get up on the board, how to catch a wave, and get you started on your surfing career. Alrighty, let's get this done. Let's try to do it. Alright. You want to get your toes up on the board like this. Then, what's super important is you want your hands flat and in towards the center of the board. You don't want your hands on the rails. So you want your hands flat in towards the center of the board. Then you're just going to push yourself up and jump to your feet. Wow, that was pretty impressive. बहुत मुश्किल है। अगली बार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सर्फबोर्ड पे खड़ा होऊंगा। प्रॉमिस। आदम। Raza, that was really pathetic. Shinali, I'd love to see you try surfing. I bet I'd do better. एक बार तो खड़ी हो जाती मैं बोर्ड पे। क्या करूँ guys? I just wasn't feeling the surf, I guess. इतना गिर के I'm sure you were feeling the pain. चलो, रज़ा wasn't feeling the surf, but one thing he is good at, ये तो मुझे पता है, वो है खाना। इसलिए इस मिशन के साथ हमने उन्हें भेजा ह्यूस्टन, जहाँ पर he found Blake's Barbecue. Guys, Blake's Barbecue is the best burger in all of Houston, Texas. मैं ये गारंटी करता हूँ कि जो वहाँ बर्गर मैंने खाया, out of this world. Have a look. गाइस, टेक्सास आए और बारबेक्यू नहीं सैंपल किया, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने यहाँ एक जगह ढूंढी है, उसका नाम है ब्लेक्स बारबेक्यू। थोड़ा आउट ऑफ द वे है, कुछ ऐसे इलाके में जो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ का बर्गर इस पूरे स्टेट में सबसे बेस्ट है। इट्स कॉल्ड ब्लेक्स बारबेक्यू और हम पता करेंगे कि आखिर इस बर्गर की क्या ख़ास बात है और ये ब्लेक साहब कौन है, आइए ज़रा पता करते हैं। गाइस, मैं द फेमस ब्लेक बारबेक्यू में हूँ और मेरे साथ हैं ब्लेक। ब्लेक, how are we doing here? Doing good, buddy. Get some burgers going? Yes, sir. All right. Well, how are we doing on this burger? Okay, we kind of we get our Look meat at that. and we buy it and we kind of pat it and make it. It's about 8 ounces of meat. There. So wait, you just squished it all up? No, we're making it better. Oh, you're making it better. We're Okay. making it better. Do your thing. Do your thing. Right. It smells delicious, by the Oh way. yeah. It's about ready now. It's about ready now. Right. We toast our buns. Yeah. Get our buns getting crispy.
Okay, so that's important to get the bun crispy. Absolutely. You can't have a dry bun. No, you can't have a dry bun. Right. You got to have a bun with a little sprig of grease on it. All right. So you get that flavor. That's where the real flavor The comes flavor in, right? comes in the bread also. All right, so I'm gonna leave it to you. I want you to make me a customized burger, the Blake special, what you like. Okay. Yeah? Okay. All right, let's do that. We get the bun. We put a little mustard. Okay. A lot of people said, my brother, he swore that mustard don't come on a burger. He said mustard only come with hot dogs. Huh? What's you're obviously not of the same opinion. No. Okay. I'm an opinion, well, whatever the customer wants, that's what we do. Fair enough. So we put a little lettuce, we put a little pickles. Right. We either put raw onions or we can grill them on the stove here. What do you prefer? I prefer raw onions. You prefer raw. Okay, so we'll stick with the raw onions. Right. Then we put a little tomatoes. And then if you want cheese, Yep. you got a little cheese on here. And then we put mayonnaise. Look at that. Yes. Mayonnaise, important. Yes. We put it here. Look at this. And normally what we do is when people get fries, we always cut it in half. Put your burger in the tap. Okay. 99% of our customers like the burger in half. I like that. And then I we'll like put, that. Then we'll put fries here, onion rings, or sweet potato fries. That's amazing. But And that's it. let's look at this, guys. Let's have a look at this beautiful, beautiful burger here. I can't wait to sink my teeth in that. So this is the Blake special, huh? That's the Blake special burger. This, how will I feel when I eat this? How am I gonna, what's the first thing that goes through my mind? Unbelievable. I am so excited. And then you go on and like, I got to go back again. Guys, we're on the verge of history here. I may never have had a burger like this. This may be the best burger I've ever had. I'm looking at it, I am excited. I saw it being made. मुझे तो बहुत शौक है ऐसे burgers खाने का और मैं बहुत excited हूँ. देखते हैं कि इसका actual taste क्या है. Blake, I'm gonna try this. Absolutely. All right? Okay. All right. Everyone ready for this? सब लोग तैयार हैं? Okay. Here we go. The moment of truth. What was that word you used? Unbelievable. Unbelievable. Blake, amazing. You, sir, are a maestro, an artist. It's time for a break, but don't go anywhere. When we return, आपको ले जाएंगे न्यू यॉर्क सिटी, जहां मैंने सैंपल किया वहां का फेमस काटी रोल. गाइज वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. हालांकि मेट्रो सिस्टम डीसी में काफ़ी बड़े इलाकों में जाने के लिए यूज़ होता है, मगर छोटे इलाकों में जाने के लिए द बस सिस्टम. गाइस, और हम छोटे लोग छोटे इलाके में ही रहते हैं, इसलिए बस हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. लेकिन छोटे इलाकों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि उनमें एक बहुत यूनिक चार्म होता है. बहुत ही यूनिक चार्म एंड बहुत ही यूनिक फ्लेवर. और ये हमें यूनिक चार्म एंड फ्लेवर दिखा न्यू ऑर्लिन्स में, जहाँ के स्ट्रीट म्यूजिक ने हमें चार्म कर दिया. सो चार्मिंग. So charming. Whoa, we can get this bus. Let's do the other side. इस शहर के लोग मौसीकी से प्यार करते हैं. बहुत से लोग यहाँ की सड़कों पर म्यूजिक बजाने के लिए आते हैं. There's
so many different types of music out here on the इस सड़क street. पर बहुत सी अकसाम का म्यूजिक बजाया जाए। ये कहना मुश्किल है कि ये जैज बैंड होगा या रॉक बैंड है या ब्लू बैंड है। You know what to call. We हमारे म्यूजिक के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ हम मुख्तलिफ किस्म का म्यूजिक बजाएंगे। a lot of other people do. We all play in different bands. हम अलग अलग बैंड्स में बजाते हैं, लेकिन आज हम सब मिलकर बजाएंगे और ये सिर्फ आज रात के लिए है। So we all this particular arrangement is just for tonight. So. Historically, it's been a center of public music performance. तारीखी एतबार से न्यू ऑर्लिन्स में अवामी मौसीकी का मुजाहरा काफ़ी अरसे से हो रहा है और मौसीकी के शोबे से वाबस्ता बहुत सी आम शख्सियात इस शहर में आती रहती हैं, जिन्होंने यहीं से अपना फ़नी सफ़र शुरू किया था। हम भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। Starting their careers the same way we're doing it. I spent a lot of years just traveling. मैंने और मेरे दोस्त ने बहुत साल अलग अलग शहरों की सड़कों पर म्यूजिक बजाते गुजारे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लग जाता है कि कौन कौन से शहरों में म्यूजिक को पसंद किया जाता है। Playing music. ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। That's my livelihood. मेल्टिंग पॉट माना जाता है। उधर हर रंग और हर नस्ल के लोग मौजूद हैं और इसका इन्फ्लुएंस उनके खाने में भी ज़रूर दिखता है। एंड स्पीकिंग ऑफ खाना, गाइस मैं न्यूयॉर्क के काटी रोल गया, जो न्यूयॉर्क में मशहूर है क्योंकि वो न्यूयॉर्क में एक देसी टच और देसी फ्लेवर ले आया है। लेट्स सी व्हाट ऑल द हाइप इज ऑल अबाउट। इट्स रियली गुड। सोनाली, ये अगली बस कब आएगी? पता नहीं, आई थिंक वी जस्ट मिस्ड इट रज़ा। Well, I guess we'll have to wait. यानी सही कह रही थी, मैं यहाँ काटी रोल पर आया हुआ हूँ। लोग कहते हैं कि नो ट्रिप टू न्यूयॉर्क इज़ कंप्लीट विदाउट अ ट्रिप टू काटी रोल। ये क्यों है और इतने ज़्यादा लोग यहाँ क्यों आते हैं, हम आज पता करने की कोशिश करेंगे। Let's take a look. यार ये बताएं कि पॉपुलैरिटी का राज क्या है काटी रोल का? What's the secret behind it? The secret is plain and simple. Okay, the menu has been simple for last 10 years, and that's the basic. The quality, खाने का जो quality है वो वैसे का same to same है. Okay, and people love the food. तो लेकिन आपके मेन्यू पे बहुत एक सिंपल चीज़ है, एक चीज़ आप बेचते हैं कबाब रोल। Yeah. तो लोग आते हैं उन्हें खाने एक ही चीज़। बहुत ज़्यादा। और इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूज नहीं होता है मेनू देख के, उनको पता है क्या चाहिए उनको खाने के लिए, तो दैट इज़ द मोस्ट फेमस थिंग। आपने कहा हमारे जो देसी लोग हैं वो तो ज़रूर खाते हैं, लेकिन जो गोरे होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, वो कितना खाते हैं, कितना पसंद करते हैं? ओह, हमारे यहाँ ये स्टोर में तो मैं बोलूँ तो देसी से ज़्यादा तो फॉरेनर्स आते हैं। मतलब इट इज़ वेरी फेमस अमॉन्ग पीपल। देखो, फॉरेनर्स को इंडियन फूड, इंडियन करीज बहुत पसंद है, एंड ये जो खाना है इट इज़ ईजी टू फॉर, मतलब उनको बहुत ईजी है लेके जाने में। ओके, दे डोंट हैव टू वेट इन लाइन्स। ओके, दे डोंट वांट टू सिट डाउन, और बिजी स्केड्यूल में सबसे बढ़िया खाना है, एंड दे लव द मीट। चलिए, आई डोंट वांट टू कीप यू टू मच, लुक्स लाइक आप बहुत बिजी हैं, यहाँ बहुत रश हो रहा है। गुड लक एंड कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग। थैंक यू। हम एक दो कस्टमर से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या है आखिर काटी रोल के बारे में दैट ड्रॉज देम हियर एवरी टाइम वन बाय वन। एक्सक्यूज मी, हाउ आर यू डूइंग? Do you think I can ask you a little bit about why it is that you come to Kati Roll? What is the reason? Speak Hindi. और भी बेहतर है भाई, आप ये बताओ कि काटी रोल आप क्यों आते हैं? क्योंकि ये
ऐसी जगह है जो पूरे न्यूयॉर्क में छा गई और सब लोग यहाँ आते हैं, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? बहुत अच्छा लगता है मुझे खाते हुए। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो आप बैक होम खाते थे इंडिया या कहीं कहीं भी आप खाते थे उसकी तरह है या थोड़ा डिफरेंट है? उसकी तरह ही है, बहुत अच्छा है। तो आप उससे बेहतर है? अगर बेहतर है जो बैक होम मिलता है। अच्छा, तो ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप तो खैर इंडियन है, मैं भी देसी हूँ, हम तो अच्छा आपको ऑर्डर आ गया लगता है, आपने क्या मंगवाया? मैंने अंडा रोल है, मिक्स वेज। तो ये बताएं कि आप तो ये खा रहे हैं, आपने तो ये बैक होम भी खाया ये ऐसा खाना, आपको क्यों लगता है कि गोरे जो यहाँ आते हैं या फॉरेनर्स यहाँ होते हैं वो क्यों इतना पसंद करते हैं ये रोल? वो तो मुझे पता नहीं, वो लोग क्यों पसंद करते हैं। तुम्हें बस अपने कबाब रोल से खुशी है। चले ज़बरदस्त यार, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर कबाब रोल। गुड। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ही खुश होते हैं। ये हमारे भाई हैं फ्रॉम साउथ एशिया, इनको भी बहुत पसंद आ रहा है। वो कह रहे हैं कि उनको वैसे ही इतना ही अच्छा लगता है जैसे बैक होम उनको खाना मिल रहा होता था। हम एक ऐसे कस्टमर से भी पूछने की कोशिश करेंगे जो साउथ एशियन नहीं है, उनसे पूछेंगे कि वाई इज़ इट कि वो काटी रोल आते रहते हैं। Let's see if we can find someone. We want to get a sense from the customers as what it is about this place that keeps drawing people here so often. What is it in your eyes? It's delicious and it's cheap. Delicious and cheap. That's all you need, huh? What do you think it is that makes it such a huge phenomenon around New York? They're opening up branches almost at a daily basis. I had the one downtown, and I live right around the street, and I was glad they opened this one up. It's delicious. What is it particularly? Is it the meat? It's the bread. You like the way it's sort of, I think it's sort of fried and it's got a texture to it. I tell myself it's healthy, but it's probably not. You never know, you never know. They don't have the calories on there. They don't have the calories, exactly. They might be lying to you, you never know. But you are a big fan of the Kathi roll. Yeah. I come here like at least once a week. All right, thanks so much. जैसे आपने देखा यहाँ के जो फॉरेनर्स हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, उन्हें भी बहुत ये पसंद आता है काटी रोल। उनको ये फिनोमेनॉन बहुत पसंद आया है और कई लोग यहाँ आते हैं खाना खाने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं ये लंच टाइम है, हिलने की जगह ही नहीं है यहाँ। we're gonna try and see if we can get some kebab roll ourselves. ट्राई करते हैं, टेस्ट करके खुद देखते हैं कि ये आखिर इसमें क्या है। Can I do a number 9 of beef tikka roll? 2 actually. I'm very excited about these. For you. Thank you. I'm about to try the famous Kathi roll, New York का मशहूर। उम्मीद है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा और लग भी रहा है बहुत ही ज़बरदस्त। I'm very excited. Let's see how it goes. All right. That is really good. ब्रेक टाइम, बट व्हेन वी कम बैक हम आपको वॉशिंगटन डीसी में एक ऐसी खातून से मिलवाएंगे जिन्होंने ना सिर्फ अपने घर पर बल्कि अपने पूरे मोहल्ले में सोलर पैनल्स लगवाए। स्टे विद अस। चलिए रेस। Uh-oh, sharp turn, sharp turn, sharp turn. Yeah. टर्निंग की बात होती है। Guys, और कुछ नहीं तो बैजा साइकिल दे। गाइज ऐसे कैपिटल शेयर बाइक्स बहुत ही पॉपुलर है डीसी में। आप ऐसे बाइक्स अड्डों से रेंट कर सकते हैं और कहीं भी डीसी में घूम सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज इट्स एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे टू ट्रैवल। गाइज एंड स्पीकिंग ऑफ एनवायरमेंटली फ्रेंडली, हम एक ऐसे नेबरहुड में गए डीसी में जहां सब घरों पर सोलर पैनल्स लगे हुए थे। ये एक प्रोग्राम है जो यहाँ डीसी में शुरू हुआ है और हमने इस प्रोग्राम के हेड से बात की कि आखिर ये प्रोग्राम शुरू कैसे हुआ। Have a look. The Arctic is experiencing faster melting.